Students, welcome back to my channel Molecule Mentor. So in this video we'll study about now preparation of haloalkanes. So इसके previous videos में, इस chapter के previous videos में हमने introduction of haloalkanes, how they are formed from alkanes, like how they are derived from alkanes, their physical properties, about the structure of haloalkanes और उसकी nature of polar bond, वो हमने सारा कुछ study किया. So now next topic is प्रेपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स. सो पहले मैं एक बार ओवरऑल आपको बता दूं कि हेलो एल्केन्स को जो है हम किस किस से प्रिपेयर कर सकते हैं. देन टर्न बाय टर्न हम एक एक मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे. लाइक दिस इज़ द सी इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द एल्केन्स की एल्केन से हमने हेलो एल्केन्स तक पहुंचना है. तो एल्केन से हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन्स. सो दिस इज़ बाय द फ्री रेडिकल हेलोजनेशन ऑफ, here it is written Cl2 but halogen Cl2 can be there, Br2 can be there, so other methods are also there. So alkanes, from alkanes, haloalkanes by prepared by this method. Then from alkenes and alkynes. So if alkenes and alkynes we are talking about, so they will be having double bond, they will be having triple bond. फाइन. एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड है, एल्कीन्स में हमारे डबल बॉन्ड है. तो ऑब्वियसली जब हम हेलो एल्केन्स तक पहुंचेंगे तो हमें एडिशन करनी पड़ेगी. ठीक है. नाउ एडिशन ऑफ हेलोजन हाइड्रोजन हेलाइड्स आप कह सकते हो, हेलोजन की और हेलोजन हेलाइड्स की. अगर आप X2 या हेलोजन की एडिशन करते हो तो वी विल बी गेटिंग द डाई हेलो एल्केन्स. ठीक है. सो HX की एडिशन करते हो, हाइड्रो हेलोजन्स की एडिशन करते हो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल. इफ़ वी आर एडिंग दैट हाइड्रोजन हेलाइड्स इनटू द that symmetrical alkenes, then no rule is being followed. But if the addition is there in unsymmetrical alkenes, then we follow the Markovnikov's rule. So Markovnikov's addition according to anti-Markovnikov's rule, anti-Markovnikov's addition. So everything we will study in detail when we will do this method of preparation of haloalkanes from alkenes and alkynes. Now next, how can we reach up to the haloalkanes, that is from alcohol. So from alcohols also we can prepare haloalkanes by, see, alcohols they are having OH group. So with the alkane, so if OH group that is replaced with any of the halogen, so then we can have the haloalkane. So we can prepare then haloalkane. So there are many halogenating agents like HX in the presence of anhydrous zinc chloride, then PX3, PX5, red phosphorus in the presence of halogen. So all these are the agents, reagents we can say, that we use to replace the OH with the halogen group. Fine. Then halogen atom. Fine. Then from silver salts of acids. So this is also a very important naming reaction, that is Hunt-Sticker reaction. So here we prepare the haloalkanes from the silver salts of acids, carboxylic acids rather. We can, it is here we can add carboxylic acids. ठीक है, from silver salts of carboxylic acids. Then by halogen exchange methods, like here again the two naming reactions are there, Schwartz reaction and Finkelstein reaction. So like alkyl fluorides or alkyl iodides which cannot be prepared directly, they are prepared by the halogen replace method. So that we will study in detail, that why they can't prepared by direct halogenation and why halogen replace method is required. ठीक है. So one by one we will discuss all these methods, like how we can prepare haloalkanes from alkanes, then from alkene and alkynes, then from alcohols, then by halogen exchange method, and from silver salts of acid. ठीक है. So now the very first method of preparation of haloalkanes from alkanes. So इसको हम थोड़ा डिटेल में करते हैं. लाइक फ्रॉम एल्केन्स, दैट इज़ बाय द हेलोजेनेशन. ठीक है. सो अगर हम देखें कि एल्केन से हमें प्रिपेयर करना है हेलो एल्केन, सो इसको ओपन करते हैं स्ट्रक्चर को, लाइक पीथेन. तो इसका एक हाइड्रोजन जो है अगर हम X से रिप्लेस कर दें, ठीक है, ये हाइड्रोजन जो है वो X से रिप्लेस कर दें, तो
हमारे पास बन जाता है हेलो एल्केन. सो दिस इज़ द वेरी यू कैन से basic method for the preparation of the haloalkane in the presence of like here it is chlorine, so it can be the bromine over here. So at this temperature and in the presence of light, so this is light sensitive reaction as this follows the free radical mechanism. So this is important that this reaction occurs via free radical mechanism. So इसका mechanism भी मैं आपको अभी डिटेल में बताती हूँ कि कैसे ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं. लाइक हियर आई हैव रिटन दिस रिएक्शन जनरली CH4 इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2. सो अगर हम जनरली देखें तो 1 by 1 पहले एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, देन वी विल गेट दैट क्लोरोमीथेन, देन फर्दर द रिएक्शन. अगर हमारे पास ये मैं आपको एक बार लिख के बता देती हूँ यहाँ पर लाइक C, देन उसके बाद हम मैकेनिज्म देखेंगे इसका. ठीक है, सेम रिएक्शन देन इट इज़ रिपीटेड. ठीक है, सेम कंडीशंस हैं, सेम रिएक्शन रिपीट हो रही है. ठीक है, देन another hydrogen is also replaced by halogen. Same way, next step, 1 by 1 each hydrogen which is attached to methane or you can say alkane, that is being replaced by the halogen. ठीक है, so ultimately we are getting the tetrachloromethane here or tetrahalomethane here. सो एज दिस इज़ द रिएक्शन. अगर हम इस रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में देखें, इसकी बात करें तो व्हेन एवर वी आर गोइंग थ्रू दिस रिएक्शन, अगर हमें हेलो एल्केन इस मेथड से प्रिपेयर करना है तो इस रिएक्शन का एक डिसएडवांटेज ये है कि वी विल बी गेटिंग द मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन्स, मिक्सचर ऑफ मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो, टेट्रा हेलो एल्केन्स विल बी गेटिंग बिकॉज दिस रिएक्शन दैट वन स्टार्टेड that you can say that follows by the free radical mechanism. So एक बार ये स्टार्ट हो जाती है तो 1 by 1 जो है वो उसका हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के जब तक सारे नहीं हो जाते वी दिस फॉर्म्स अ चेन सॉर्ट ऑफ रिएक्शन. तो ठीक है, वो प्रोसीड होती रहती है. सो विल बी गेटिंग द मिक्सचर ऑफ मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन. सो अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें, लाइक यहाँ हमने बात करी कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म को डिटेल में देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी. अभी तो मैंने सिर्फ एक लाइन से रिएक्शन को लिख के बता दिया कि 1 by 1 जो है वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है. एक बार ये हो गया, एक बार ये हुआ, -HX तो सब में निकलेगा. ठीक है, एक HX जो है निकलेगा, एक हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, बाकी जो है वो यूवी की प्रेजेंस में इन ऑल द स्टेप्स यू आर सपोज टू राइट लाइक दिस. ठीक है, अब अगर हम इसको इसके मैकेनिज्म को देखें एज व्हाट इज़ द फंक्शन और यू कैन से आई सेड ना कि दिस रिएक्शन इज़ लाइट सेंसिटिव. तो क्या फंक्शन है यहाँ पर लाइट का? सपोज हेलोजन है या हमने क्लोरीन ले रहे हैं. सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट this undergoes homolytic fission. Homolytic fission means each species is getting the equal number of electrons or you can say they take their own electron and just they get separated. So हमारे पास ये बन जाते हैं free radicals. So as once they are formed they are very very reactive in nature. ठीक है, this is free radical. So ये attacking reagent है. ये दोनों ही हमारे पास फ्री रेडिकल्स हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल. सो ये अटैकिंग रिएजेंट्स हैं. दे आर वेरी वेरी रिएक्टिव. वंस दे आर फॉर्म्ड दे अटैक ऑन द CH बॉन्ड लाइक दिस. सी अगर ये हेलोजन है दिस फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल. सो व्हाट विल हैपन वंस इट इज़ अप्रोचिंग टूवर्ड्स हाइड्रोजन, जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो वेनेवर दे अटैक ऑन द अदर बॉन्ड दे कोज द होमोलिटिक फिशन ऑफ द अदर बॉन्ड. अब जैसे इसने यहाँ अटैक किया तो CH बॉन्ड की होमोलिटिक फिशन करवा दी. अब CH बॉन्ड की होमोलिटिक फिशन कराई तो H फ्री रेडिकल बन गया. अब H फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में मिल गए. ये मैंने यहाँ से मैकेनिज्म स्टार्ट किया है, आप नोट कर सकते हैं. तो यहाँ पे आ गया हमारा दिस, ये हो गया मिथाइल फ्री रेडिकल. ठीक है, प्लस HCl. अब
ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया है, अब मिथाइल फ्री रेडिकल जो है फर्दर कैसे एक्ट करेगा, वो दूसरे Cl मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, ठीक है। सो अब ये और इसकी दिस होमोलिटिक फिशन जो है वो इसकी करवाएगा, ठीक है। अब इसकी होमोलिटिक फिशन कराई तो Cl फ्री रेडिकल बन गया। अब Cl फ्री रेडिकल जो है वो इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बना करके क्या बना देगा, मिथाइल दिस मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, और यू कैन से क्लोरोमीथेन प्लस Cl फ्री रेडिकल। अब फर्दर जो है देखो इसके इस फर्स्ट स्टेप के ये जो लास्ट वाला हमारे पास प्रोडक्ट ये बना है लास्ट स्टेप में, ठीक है। तो ये इसका ये भी फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल कहाँ से आई, जो इनिशिएट हुआ था लाइट से। नाउ वंस इट इज़ इनिशिएटेड, ठीक है, इट कीप ऑन अटैकिंग लाइक दिस, और हमें यहाँ पर फिर से फ्री रेडिकल मिल गया। अब ये फ्री रेडिकल जो है फिर से यहाँ तो सेम मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, अगर ये इस पे भी अटैक करेगा देन सेम स्टेप विल रिपीट। सपोज नाउ इट इज़ अटैकिंग ऑन दिस बॉन्ड, तो ये यहाँ से H रिप्लेस करेगा। सो 1 by 1 ये जो है वो रिप्लेस करता रहेगा। सो विल बी गेटिंग द मिक्सचर ऑफ मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन। सो दिस इज द mechanism that how it follows the free radical mechanism if we perform the halogenation of alkanes to form the haloalkanes. See now अगर हमें यही रिएक्शन करवानी है, ठीक है, हेलोजिनेशन ही करवानी है एंड वी प्रेफर टू हैव, और हमें सिर्फ यू कैन से कि हमें मोनो हेलो एल्केन चाहिए, तो अगर मोनो हेलो एल्केन की कंसंट्रेशन को हमें इंक्रीज़ करना है और यू कैन से कि उसके अमाउंट को बढ़ाना है, तो 2 थिंग्स कैन बी डन। और इसमें हमें सक्सेस कैसे मिल सकती है कि या तो हम मीथेन की जो कंसंट्रेशन है या मीथेन का अमाउंट जो है अगर हम एक्सेस में ले लें और Cl का अमाउंट जो है वो लिमिटेड अमाउंट में ले, ठीक है। सो इन दिस रिगार्ड to form if only one Cl is to be introduced, we can say the success can be achieved if methane is taken in excess, ठीक, and Cl is taken in very limited amount। क्यों, अगर मीथेन को हम एक्सेस में लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी कि ये Cl जो फ्री रेडिकल है ये सेम मॉलिक्यूल पे अटैक करने की बजाय ये नए मॉलिक्यूल पे अटैक करे इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इज़ मोर। तो मोटो ये रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि फ्री रेडिकल जो है वो फिर से दूसरी बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये दूसरी बॉन्ड पे भी अटैक कर सकता है, बट इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इज़ मोर, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो मिथाइल फ्री दिस क्लोरीन फ्री रेडिकल की दूसरे न्यू मॉलिक्यूल पे, न्यू मीथेन के मॉलिक्यूल पे अटैक करने की ज़्यादा रहेगी। सो ऐसे होगा क्या, इफ़ द कंसंट्रेशन इज़ मोर, सो एवरी टाइम Cl फ्री रेडिकल जो है दैट विल कीप ऑन अटैकिंग ऑन द न्यू मॉलिक्यूल। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन that can be increased, ठीक है। सो इन दिस वे we can achieve success in this regard that concentration of mono haloalkanes that can be increased. Now next फ्लोरिनेशन है। अगर हम सेम प्रोसेस से फ्लोरिनेशन करवाते हैं लाइक इन द प्रीवियस रिएक्शन वी यूज टू राइट लाइक X2, तो X2 में मोस्टली हम Cl2 की एग्जांपल लेते हैं या Br2 की भी ले सकते हैं। अगर हम F2 डायरेक्ट उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं डायरेक्ट फ्लोरीन की, सो दैट इज़ नॉट सक्सेसफुल बिकॉज विथ फ्लोरीन द रिएक्शन बिकम्स हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। सो अल्काइल फ्लोराइड्स जो हैं वो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन की बजाय हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड, ठीक है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नेमिंग रिएक्शन, दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। सो हेलोजन एक्सचेंज मेथड टू प्रिपेयर fluoroalkanes, that is the best method to prepare that fluoroalkanes instead of using fluorine directly or instead of using that performing fluorination with F2 directly, ठीक है। So suppose see here we are having
this chloroethane, so it is made to react with He2F2. so इसमें हमने एक एग्जांपल में तो He2F2 लिया है, मर्क्यूरस फ्लोराइड लिया है, बट हेयर इट कैन बी एनी ऑफ द मेटेलिक फ्लोराइड लाइक दिस. सो किसी भी फ्लोराइड को हम ले सकते हैं. देन क्लोरीन इज रिप्लेस्ड विद द फ्लोरीन, सो वी विल बी गेटिंग द फ्लोरोइथेन. सो इन दिस वे हमने हेलोजन एक्सचेंज करके, कि ये इसके पास Cl था तो यहाँ से हमने फ्लोरीन को एक्सचेंज करके, यानी कि एक्सचेंज कर दिया, तो हमने ये हमारे पास बन गया फ्लोरोइथेन. सो दैट्स वाई दिस मेथड इज नेम्ड एज हेलोजन एक्सचेंज मेथड. ठीक है. सो this is also the naming reaction, Schwarz reaction. So if it comes like Schwarz reaction, so we should know that it is the method of formation of fluoroethane by halogen exchange method by using the metallic fluorides. Then next है iodination. So iodination, if we are performing like in the previous reaction, अभी जब हमने एग्जांपल ली तो यहाँ पर Cl2 लिया था हमने. सो अगर सेम मेथड से हम आयोडोनेशन परफॉर्म करते हैं, दिस रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल इन नेचर. ठीक है. सो वन बाय वन हम सारी रिएक्शंस को देख रहे हैं एक बार, कि हम क्लोरीनेशन करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं, तो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे हमें सक्सेस मिल सकती है, और फ्लोरो एल्केन्स को प्रिपेयर करना है तो बेस्ट मेथड कौन सा है. सो और आइडोमिथेन्स और आइडो एल्केन्स, यू कैन से आइडोमिथेन और आइडो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. सो अगर हम डायरेक्ट आइडोनेशन कराते हैं तो CH4 प्लस आयोडीन, सो डायरेक्ट आयोडीन से रिएक्ट करवाया है तो हमारे पास ये बन रहा है आइडोमिथेन एंड प्लस HI. सो HI जो बन रहा है दैट इज़ वेरी, यू कैन से अनस्टेबल, इट हैज़ वेरी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी. ठीक है. सो उसकी वजह से ये बहुत जल्दी ब्रेक कर जाता है. दिस इज़ हाईली अनस्टेबल. सो एज सुन एज इट इज़ फॉर्म्ड this bond HI, that breaks down again, and again it prefers, or you can say it promotes the backward reaction. So इसकी वजह से जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाती है. ठीक है. सो whenever direct iodination is performed, लेकिन इस रिएक्शन को और यू कैन से प्रोडक्ट की तरफ ले जाने के लिए, कि हमारे पास आइडोमिथेन का अमाउंट ज़्यादा बने, बिकॉज क्योंकि अगर रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगी तो अमाउंट, और यू कैन से यील्ड ऑफ आइडोमिथेन, दैट कैन नॉट बी, वी आर नॉट गेटिंग द मच अमाउंट ऑफ आइडोमिथेन, वी कैन से लाइक दिस. ठीक है. सो इसको आगे फॉरवर्ड प्रोसीड करने के लिए हमें इसमें कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करना पड़ता है, लाइक HNO3, लाइक HiO3. सो आयोडिक एसिड और यू कैन से नाइट्रिक एसिड हम यूज़ करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सो उसका फंक्शन क्या है, कि जैसे HI जो है वो फॉर्म होता है एंड वी हैव एडिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो HI जो है दैट फर्दर रिएक्ट्स विथ HNO3 और HiO3 लाइक दिस टू लिबरेट आयोडीन. मेनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज़ करने का ये पर्पस है कि हम जैसे ही HI फॉर्म होता है हम इसको रिमूव कर दें. ठीक है. सो हेयर दिस लिचेट लेयर प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड. ठीक है. दिस लिचेट लेयर प्रिंसिपल दैट इज़ अप्लाइड, कि अगर हम प्रोडक्ट की जो कंसनट्रेशन है या प्रोडक्ट का अमाउंट जो है वो रिमूव कर देते हैं, सो टू अंडू द इफेक्ट ऑफ दिस चेंज व्हाट वी आर मेकिंग बाय रिमूविंग द कंसनट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, सो रिएक्शन विल प्रोसीड टुवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है. सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द this oxidizing agent when it is added during the direct iodination of this alkanes. ठीक है. So question can be there, why there is always a requirement of an oxidizing agent when direct iodination is performed with the alkanes. Fine. So this is the one of the method of formation of iodoalkanes. Another method again by halogen exchange method, that alkyl iodides or iodoalkanes can be prepared. So this is again the naming reaction, that is Finkelstein reaction. So अब इसमें भी क्या है, हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, लाइक एनी दिस सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड कैन बी यूज्ड. ठीक है. सो हेयर वी कैन राइट द कंडीशन हेयर ऑल्सो, ड्राई
एसीटोन, ठीक है, उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. सो हियर अगेन आयोडीन इज दिस एक्स और एनी हेलोजन लाइक क्लोरीन है, ब्रोमीन है, दैट इज रिप्लेस्ड विथ आयोडीन. सो ये हमारे पास बन गया आर आई और NaX. अगर Cl है तो NaCl और NaBr फॉर्म हो जाएगा. So whatever this NaCl and NaBr they are formed, they are precipitated in the triacetone, so which facilitates the forward reaction again according to the Le Chatelier principle. So this principle is really very important. So here also again how this principle is applied here. So as soon as NaX is formed, सो लाइक NaX है तो अगर यहाँ पर हमारे पास Cl है तो NaCl बनेगा, Br है तो NaBr बनेगा. सो अगर ये दोनों बनते हैं तो एज सुन एज दे आर फॉर्म दे आर प्रेसिपिटेटेड आउट फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, ठीक है. सो मीन टू से एक तरह से ये हो गया कि प्रोडक्ट जो है वो रिमूव हो रहे हैं, तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा जाएगी. सो इट यू कैन से फैसिलिटेट द फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है. सो हियर Le Chatelier principle is applied. So all these methods were for the preparation of haloalkanes from alkanes. Fine. So from alkenes and alkynes, so we'll study all these methods one by one. So in the next video, so we'll study the preparation of haloalkanes from alkenes and alkynes.